Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about solutions of Ekam Kasauti 5 और यूनिट टेस्ट 5 ऑफ मैथ्स। ये टेस्ट 25 मार्क्स का है और इस टेस्ट में टोटल 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के हैं और सेक्शन ए में टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि सेक्शन बी में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के हैं, यानी कि सेक्शन सी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और लास्ट सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन डी 4 मार्क्स का है। और इस तरह से जब हम 4 सेक्शंस को ऐड करेंगे तो टोटल 25 मार्क्स हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सेक्शन बी, सी और डी के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको समझाऊंगी और इसी तरह से एकम कसौटी 5 साइंस के भी सॉल्यूशन के वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। Section A. Select the proper alternative from the given to make the statement true. 1 mark each. Now question number 1. In the given figure, angle ABC equals to 25 degree. Then angle AOC equals to dash. इस फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर में इस एंगल को कह रहा है 25 डिग्री है, तो इस एंगल को आपको निकालना है। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 135 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 145 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 165 डिग्री and fourth option 155 degree and answer will be option D 155 degree। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 155 डिग्री आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following quadratic equation do not have real roots? Options are x square minus 4x plus 3 root 2 equals to 0. Second option x square plus 4x minus 3 root 2 equals to 0. Third option x square minus 4x minus 3 root 2 equals to 0. Fourth option 3x square plus 4 root 3x plus 4 equals to 0. Answer will be A. x square minus 4x plus 3 root 2 equals to 0. जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो A ऑप्शन आता है। Now question number 3. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and PQ are points on AD and BC respectively, such that PQ is parallel to DC if PD equals to 18 centimeter, BQ equals to 35 centimeter and QC equals to 15 centimeter, then find AD. Okay, and options are first option 55 centimeter, second option 57 centimeter, third option 60 centimeter, fourth option 62 centimeter. Answer will be C 60 centimeter. Next question. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of areas of triangle ABC and BDE is first option 2:1, second option 1:2, third option 4:1 and fourth option 1:4. Answer will be C 4:1. Now next question. Which of the following quadratic equation have x equals to 3 as one of its roots? First option x square minus 8x plus 15 equals to 0. Second option x square plus 8x plus 15 equals to 0. Third option x square minus 8x minus 15 equals to 0 and fourth option x square plus 8x minus 15 equals to 0. Answer will be A, x square minus 8x plus 15 equals to 0. Now section B. सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक है। ओके, और सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं। सो क्वेश्चन 6, two concentric circles are of the radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिसमें से बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड के लेंथ को निकालना है जो कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए फिगर किस तरह का बनेगा वो देख लेते हैं। इस तरह का फिगर बनेगा जब 2 सर्कल एक ही सेंटर से बना हुआ हो तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। और यहाँ पर बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर और ए बी बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से सेंटेंस में लिख देंगे। लेट O बी द कॉमन सेंटर ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, radius of larger circle equals to 5 cm, radius of a smaller circle equals to 3 cm and OP is perpendicular to AB। यहाँ देख लेते हैं फिगर में OP is perpendicular to AB। ओके,
तो हम ये भी कर सकते हैं कि ओपी एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, और यदि ओपी एबी को बाइसेक्ट करेगा तो हम ये भी कर सकते हैं कि एपी इक्वल्स टू पीबी और पीपी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एपी इक्वल्स टू बीपी, और फिर हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे, और इस ट्रायंगल को लेने के बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे नेमिंग के साथ, इन ट्रायंगल ओएपी ओए स्क्वायर दिस वन इक्वल्स टू एपी स्क्वायर दिस वन प्लस ओपी स्क्वायर दिस वन। फिर इसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां ओए का वैल्यू 5 है, एपी हमें निकालना है और ओपी का वैल्यू 3 है। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उस 9 को हम लोग इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा स्टेप 25 माइनस 9 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 16 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। क्योंकि हमें एपी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, अंडर रूट 16 इक्वल्स टू एपी, जिसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि एपी का वैल्यू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग फिगर में देखते हैं कि एपी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक एपी है। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन हमें निकालना है एबी का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एपी का जो भी वैल्यू निकला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एबी का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे AB इक्वल्स टू 2AP इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जो कि बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड का लेंथ होगा। Now next question, question number 7. Find the root of the following equation by factorization. इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/6 वेयर कंडीशंस आर x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/6। ओके, फिर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x माइनस 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इन ब्रैकेट। जब ऐसे टर्म का एलसीएम निकाला जाता तो हम लोग उसे ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं, और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड होल इक्वल्स टू 5/6। ओके, फिर हम लोग इस टर्म और इस टर्म को आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपैंड कर देंगे। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर को जब एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जब x माइनस 1 होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है x माइनस 1 एंड x प्लस 1, यहाँ भी हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के दो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो सेम टू सेम आ गया, माइनस यहाँ भी सेम आ गया, x स्क्वायर ये भी सेम आ गया, माइनस 2x के जगह पर हम लोग प्लस 2x लिखेंगे और प्लस 1 के जगह पर हम लोग माइनस 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली x स्क्वायर लिख देंगे एंड माइनस को भी डायरेक्टली लिख देंगे और 1 स्क्वायर को 1 लिख देंगे एंड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि यदि कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर यहाँ लिखा है और यहाँ माइनस x स्क्वायर है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2x एंड प्लस 2x को ऐड करके लिख देंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आ गया इक्वल्स टू 5/6। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप आ जाएगा 4x मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 24x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 5। इस 5 को x स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस 5 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रीअरेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5। इस 24x को भी हम लोग एक साइड में लेकर के चले गए और दूसरे साइड में 0 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो तो ऐसे दो टर्म आए जिसको ऐड करने पर ये जो ओरिजिनल टर्म है वो आ जाए, और उन दोनों स्प्लिट किए हुए टर्म को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू है उसके बराबर आए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा,
5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे और साथ में कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग जब इन दोनों टर्म को एक साथ लेकर के कॉमन निकालते हैं तो हमारा कॉमन निकलता है 5x और ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस 5 प्लस जब इन दोनों टर्म का कुछ कॉमन निकालते हैं तो वो कॉमन आ जाता है 1 एंड अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 एंड दिस होल इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, इट मीन्स हमारे 2 zeros निकल गए। अब इस 2 zeros का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 5। फिर इसे हम लोग सेंटेंस में लिख देंगे, thus x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। Now next question, question number 8. Find the value of k for the following quadratic equation so that it has two real and equal roots. And quadratic equation is 5x square minus 2kx plus 20 equals to 0. तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k का वैल्यू निकालते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू हो जाता है 5, b का वैल्यू हो जाता है माइनस 2k और c का वैल्यू हो जाता है 20। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो b का वैल्यू है माइनस 2k, चूंकि यहाँ पर b का स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 20 तो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल्स टू 0। फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चूंकि यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में माइनस 400 को इक्वल्स टू के इधर लिख देंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 400। क्योंकि हम लोग को k का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे k स्क्वायर इक्वल्स टू 400 अपॉन 100। फिर इसे रिड्यूस कर देंगे तो k स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 100, इट मीन्स k का वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस। ओके, now question number 9. In triangle ABC, this triangle DE is parallel to BC. Find x. Okay, यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 3, EC का वैल्यू दिया है x प्लस 5, DB का वैल्यू दिया है x प्लस 1 और AD का वैल्यू x निकालना है हमें। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, क्योंकि ये बताया था कि DE जो है BC की पैरेलल है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां AD का वैल्यू x है यहाँ AD का वैल्यू x है, DB का वैल्यू x प्लस 1 है दिस वन और AE का वैल्यू x प्लस 3 है और EC का वैल्यू x प्लस 5 है। इन सबको लिख देंगे, लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ठीक इसी तरह से प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे कि यदि कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो इक्वल्स टू के इधर x स्क्वायर है और इक्वल्स टू के इधर भी x स्क्वायर है तो हम लोग इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं और फिर उसे रीअरेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 5x माइनस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे माइनस 3x और माइनस x को ऐड करके लिख देंगे तो हमारा स्टेप हो जाएगा 5x माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और लास्ट में x का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके, यानी कि AD का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। Now next question, question number 10. A girl of height 90 centimeter is walking away the base of the lamp post at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ एक लैम्प सेट है जिसको AB से डिनोट किया जा रहा है और यहाँ एक गर्ल है जिसको CD से डिनोट किया जाता है। ये गर्ल लैम्प पोस्ट से 4 सेकंड तक आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने के बाद इस गर्ल का शैडो का लेंथ क्या होगा उसको हमें निकालना है। ओके, और इस गर्ल का जो स्पीड है उसका वैल्यू है 1.2 पर मीटर सेकेंड।
और लैम्प पोस्ट का हाइट है 3.6 मीटर और गर्ल का हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो हम लोग 90 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस तरह से लिखेंगे, लेट ए बी इज द लैम्प पोस्ट एंड सी डी द गर्ल आफ्टर वॉकिंग 4 seconds अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ओके, फ्रॉम द फिगर डी इज द शैडो ऑफ द गर्ल। सब समझा चुके हैं और यही हमें निकालना है, इसलिए हम लोग इसे कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट डी ई बी एक्स मीटर्स। Now BD equals to 1.2 मीटर multiplied by 4 equals to 4.8 मीटर, क्योंकि यहाँ पर स्पीड दिया हुआ था गर्ल का 1.2 मीटर पर सेकंड और गर्ल चल रही है कितना 4 सेकंड, इसलिए हम लोग इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो वैल्यू आ जा रहा है 4.8 मीटर। Here in triangle ABE and triangle CDE हम लोग अब दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABE और छोटा वाला ट्रायंगल CDE। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, और दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो ये भी हम लोग लिख देंगे। और दूसरा क्या हम लोग देख रहे हैं, एंगल E इक्वल्स टू एंगल A। ये एंगल E जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी है और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है। ओके, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेम एंगल, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, और उसके क्राइटेरियन को लिख देंगे AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं BE अपॉन DE इक्वल्स टू AB अपॉन CD। अब ये कैसे लिखेंगे, फिगर में देख लेते हैं, BE अपॉन DE ओके एंड AB अपॉन CD, फिर सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो BE का वैल्यू हो जाएगा 4.8 प्लस x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4.8 निकला था और इधर x है, तो इन सबको लिख देंगे हम लोग। ओके, डिवाइडेड बाय DE का वैल्यू x है जो कि हम लोग एज्यूम किए थे, और AB का वैल्यू 3.6 है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और CD का वैल्यू 0.9 है क्योंकि गर्ल का हाइट दिया हुआ था 90 सेंटीमीटर, और जब 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 0.9। ओके, इसके बाद हम लोग इसको रिड्यूस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4.8 प्लस x इक्वल्स टू 4x। फिर हम लोग x को एक साइड ले लेंगे और 4.8 को एक साइड छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4.8। फिर x का वैल्यू हो जाएगा 1.6, यानी कि गर्ल के शैडो का वैल्यू क्या हो गया 1.6 मीटर। तो हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे, सो द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 seconds इज 1.6 मीटर लॉन्ग। नाउ सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 11, a 5 meter long ladder is placed leaning towards the vertical wall such that it reaches the wall at 0.4 meter high. If the foot of the ladder is moved 1.6 towards the wall, then find the distance by which the top of the ladder would slide upwards on the wall. हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let length AC equals to length of the ladder, or this equals to 5 meter, and BC equals to height of the wall, and this equals to 4 meter. If the foot of the ladder is moved 1.6 meter towards the wall, it means AD equals to 1.6 meter, then ladder is slides upwards CE, let CE equals to x meter। जिसको हमें निकालना है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो x मीटर है। अब एक बार हम लोग इस सॉल्यूशन के फिगर को देख लेते हैं। इसके लिए इस तरह का फिगर होगा। ओके, यहाँ ABC एक ट्रायंगल है और फिर DBE एक ट्रायंगल है। ओके, जहां पर DE का वैल्यू है 5 मीटर है और AC का वैल्यू भी 5 मीटर है क्योंकि ये लैडर की हाइट है। ओके, और CB का वैल्यू है 4 मीटर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो AC का वैल्यू है 5, AB हमें निकालना है और BC का वैल्यू है 4, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद स्टेप हो जाएगा 25 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 16। फिर इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद स्टेप हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16। फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9, क्योंकि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो रहा है तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 मीटर। देयरफॉर DB इक्वल्स टू AB माइनस AD। यहाँ फिगर में देख लेते हैं, DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB माइनस AD हो जाएगा ना। तो हम लोग इसके बाद इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो DB इक्वल्स टू AB का वैल्यू 3 एंड माइनस AD का वैल्यू 1.6। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DB का वैल्यू आ जाएगा 1.4 इसका वैल्यू। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल EBD, इसको भी फिगर में देख लेते हैं, EBD ये वाला ट्रायंगल। ओके, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ED स्क्वायर इक्वल्स टू EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर इस वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो ईडी का वैल्यू है 5 और बीडी का वैल्यू है 1.4 जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद स्टेप हो जाएगा 25 माइनस ईबी स्क्वायर प्लस 1.96। ओके, जब 1.4 का स्क्वायर करते हैं तो 1.96 आता है और फिर इसे रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा ईबी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1.96। फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ईबी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 23.04 और ईबी का वैल्यू हो जाएगा 4.8 मीटर। सो ईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ईबी माइनस बीसी एंड दिस इक्वल्स टू 4.8 माइनस 4 एंड दिस इक्वल्स टू 0.8 मीटर। फिर से स्टेटमेंट में लिख देंगे thus the top of the ladder would slides upward on the wall at distance of 0.8 meter. Now question number 12. Yashvi rides a bicycle at a uniform speed. If the speed had been 4 km per hour more, it would have taken 1 hour less to travel 48 km distance. Determine her speed. इस क्वेश्चन में करें कि यशवी एक साइकिल से राइड कर रही है और उसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म। यदि उसके स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया गया है तो वो जितना टाइम इससे पहले ले रही थी उससे 1 आवर कम टाइम ले रही है और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 48 किलोमीटर। अब बताना है कि उसका स्पीड क्या है। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यशवी इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमें नहीं पता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर इट मींस स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि पहले उसके यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग एज्यूम किए थे x किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 4 कर देंगे एंड टाइम क्या दिया हुआ है 1 आवर और डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इसमें इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 48 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। Then time taken to cover 48 km at increased speed equals to x plus 4 equals to time taken to cover 48 km upon x speed. Okay? तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 48 upon x plus 4 equals to 48 upon x and this whole equals to 1. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस 48 को भी इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे तो हमारा स्टेप हो जाएगा 48 अपॉन x प्लस 4 माइनस 48 अपॉन x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चूंकि दोनों टर्म में 48 है तो 48 को कॉमन लेकर के लिखेंगे तो हो जाएगा 48 इन ब्रैकेट 1 बाई x प्लस 4 माइनस 1 बाई x एंड दिस होल इक्वल्स टू 1। ओके, स्टेप हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x प्लस 4 and this whole equals to 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 48 multiplied by 4 it means कि 192 and divided by x multiplied by x plus 4 and this whole equals to 1। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 192 equals to x in bracket x plus 4 और नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 192 equals to x square plus 4x। नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स का है तो इसको स्प्लिट करके 4 टर्म्स पे कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ लेकर के उसके कॉमन को निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ लेकर के उसके कॉमन को निकाल देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इन ब्रैकेट x प्लस 16 माइनस 12 in bracket x plus 16 and this whole equals to 0। फिर हमें 2 zeros का वैल्यू पता चल जाएगा x plus 16 and x minus 12 जिससे 2 zeros आसानी से निकल जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 16 और x का वैल्यू हो जाएगा 12। क्योंकि नेगेटिव साइन का होना पॉसिबल नहीं है तो आंसर हो जाएगा x equals to 12। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे ये स्पीड नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल सो स्पीड ऑफ द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। नाउ सेक्शन डी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। In the given figure, OB is perpendicular bisector of the line segment DE and FE is perpendicular to OB and FE intersect OB at the point C. Prove that 1 by OA plus 1 by OB equals to 2 by AC। ये डायग्राम है। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे जो प्रूव करना है उसको पहले लिख देंगे 1 by OA plus 1 by OB equals to 2 by OC। According to question, in triangle BOD and triangle AOF। अब यहाँ हम लोग ट्रायंगल को देख लेते हैं BOD और AOF को। तो ट्रायंगल हमारा हो रहा है BOD और दूसरा ट्रायंगल AOF तो AOF। ओके, तो ये बड़ा ट्रायंगल हो गया और ये छोटा ट्रायंगल हो गया।
इसमें क्या देख रहे हैं इन दोनों में, एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A, और ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तुम लोग यहाँ लिख देंगे इन ब्रैकेट 90 डिग्री, एंड एंगल O इक्वल टू एंगल O कॉमन, एंगल O दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन, बड़े ट्रायंगल के लिए भी और छोटे ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, तुम लोग ऐसे लिख देंगे और फिर लिखेंगे सो ट्रायंगल BOD सिमिलर टू ट्रायंगल AOF बाय AA सिमिलरिटी। यदि ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं OA अपॉन OB, यहाँ देख लेते हैं OA अपॉन OB दिस वन इक्वल्स टू FA अपॉन DB, FA अपॉन DB लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल FAC एंड ट्रायंगल EBC, तो ट्रायंगल यहाँ देख लेते हैं फिगर में, ट्रायंगल FAC इस ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं EBC, EB एंड C, यानी इसके अपोजिट जो ट्रायंगल है। ओके, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा सिमिलर है, तो एंगल FCA दिस एंगल एंड एंगल BCE ये एंगल। ओके, और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, तुम लोग ऐसे लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो ट्रायंगल FAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBC, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, और यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं FA अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन BC, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं FA अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन BC, EB के जगह पर हम लोग DB लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं EB के जगह पर DB कैसे लिख सकते हैं, EB के जगह पर DB लिख सकते हैं क्योंकि OB लाइन जो है वो DE को बाइसेक्ट कर रहा है और यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। फिर दोनों इक्वेशन से हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, OA अपॉन OB इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, OA अपॉन OB इक्वल्स टू OC माइनस OA, AC को हम लोग लिख सकते हैं OC माइनस A और BC को लिख सकते हैं OB माइनस OC, इसको भी फिगर में देख लेते हैं। AC को क्यों लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए A और C है, तो AC को हम लोग क्या लिख रहे हैं OC माइनस OA, आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग OB को लिख देंगे OB माइनस OC, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप आ जाएगा OA इन ब्रैकेट OB माइनस OC इक्वल्स टू OB इन ब्रैकेट OC माइनस OA। नेक्स्ट स्टेप में हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टेप हो जाएगा OA मल्टीप्लाइड बाय OB माइनस OA मल्टीप्लाइड बाय OC इक्वल्स टू OB मल्टीप्लाइड बाय OC माइनस OB मल्टीप्लाइड बाय OA, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए कलर जैसे दिया हुआ है, यानी कि इस पूरे टर्म को या इक्वल्स टू किधर ले आ रहे हैं और इस पूरे टर्म को इक्वल्स टू के उधर लेकर के जा रहे हैं, तो स्टेप हो जा रहा है OA मल्टीप्लाइड बाय OB प्लस OB मल्टीप्लाइड बाय OA इक्वल्स टू OB मल्टीप्लाइड बाय OC प्लस OA मल्टीप्लाइड बाय OC। ओके, फिर सभी को हम लोग OA मल्टीप्लाइड बाय OB मल्टीप्लाइड बाय OC से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि सभी 4 टर्म्स को OA मल्टीप्लाइड बाय OB मल्टीप्लाइड बाय OC से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारा इस तरह का स्टेप बनेगा और स्टेप बनने के बाद जो जो कैंसिल हो रहा है टर्म उसको कैंसिल भी कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं OA मल्टीप्लाइड बाय OB यहाँ से आए और जो डिविजन था उसको भी लिख देंगे OA मल्टीप्लाइड बाय OB मल्टीप्लाइड बाय OC, ऐसा सब में लिखेंगे OA मल्टीप्लाइड बाय OB मल्टीप्लाइड बाय OC, यहाँ भी इसी तरह से लिख दें और कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद जो बच रहा है उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो यहाँ क्या बच रहा है 1, ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं और 1 डिवाइडेड बाय OC बच रहा है तो 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर में कुछ भी नहीं बच रहा है लेकिन नीचे में OC बच रहा है तो 1 बाय OC एंड इक्वल्स टू इसमें क्या बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखेंगे, नीचे बच रहा है OA तो नीचे लिखेंगे OA, प्लस यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखेंगे, नीचे बच रहा है OB तो OB लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 2 अपॉन OC एंड इक्वल्स टू 1 बाय OA प्लस 1 बाय OB। इसके बाद इसको रीअरेंज कर देंगे और रीअरेंज करने के बाद जो प्रूव करने के लिए कहा गया था वो प्रूव हो चुका। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।